آپ کو بتائیں کہ اب امتحانات کے نتائج میں نمبرز نہیں گریڈ ملیں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں گریڈنگ سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ آئندہ برس 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلباء کے نتائج گریڈنگ سسٹم کے تحت جاری کیے جائیں گے۔ فیل ختم کرتے ہوئے انسیٹسفیکٹری گریڈ دیا جائے گا۔ سائنسی مضامین میں کیمبرج کی طرز پر پریکٹیکل کے بجائے MCQs لیے جائیں گے۔ چیئرمین IBCC غلام علی ملاح نے کہا، طلباء کو نمبروں کی دوڑ سے نکال کر بہتر تعلیم دینا ہے۔ ماہر تعلیم نے گریڈنگ سسٹم کو طلباء کے لیے مفید قرار دے دیا۔ رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد۔ تعلیمی نظام میں طویل عرصے بعد بڑی تبدیلی۔ میٹرک اور انٹر امتحانات میں نمبرز کے بجائے گریڈنگ ہوگی۔ نگراں وزیر تعلیم رانا حسین کا کہنا ہے کہ میٹرک اور انٹر امتحانات میں طلباء کے گریڈنگ سسٹم کے تحت نتائج جاری کیے جائیں گے۔ اگر آپ کے ہاں سے کویسچن پیپر آ گئے اور جو اسیسمنٹ کوئی ماہر ہیں ان کویسچن پیپرز کو ایون جو MCQs کو ذرا سا ویٹ دیں، کیونکہ دیکھیے ایک بات بتا دوں، برائے مہربانی اپنے کریکولم ڈاکیومنٹس کو بہت غور سے دیکھیے۔ یور کریکولم ڈاکیومنٹس ویری کلیئرلی گیو یو دی اسیسمنٹ فریم ورک، ویری کلیئرلی گیو یو دی ڈویژن آف یور۔ انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیٹی کے تحت مقامی ہوٹل میں تعلیمی بورڈ کے شعبہ امتحانات سے متعلق افراد کی ورک شاپ ہوئی۔ چیئرمین IBCC غلام علی ملاح کہتے ہیں کہ طلباء کو نمبروں کی دوڑ سے نکال کر بہترین تعلیم دینا ہے، جبکہ چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی سید شرف علی شاہ نے کہا کہ دنیا بھر میں گریڈنگ سسٹم رائج ہے، یہ طلباء اور اساتذہ کے لیے آسانیاں لائے گا۔ IBCC کے مطابق سال 2024 میں 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلباء کے نتائج گریڈنگ سسٹم کے تحت جاری کیے جائیں گے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ نگراں حکومت کے اقدامات کے باعث کراچی کے سرکاری اسکولوں کے داخلوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن 40% طالب علم اسکولوں سے غیر حاضر رہنے لگے۔ آئمہ خان رپورٹ کریں گی۔ حصول علم میں غربت حائل ہونے لگی۔ شہر قائد میں حکومت سندھ نے اسکولوں میں داخلوں کی شرح تو بڑھا لی، لیکن حکام کو حاضری کی کمی کا تاحال سامنا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں 40% طالب علم روزانہ کی بنیاد پر غیر حاضر رہنے لگے۔ ڈائریکٹر گورنمنٹ اسکولز کراچی یار محمد بالادی نے اعتراف کیا کہ بچوں کی بڑی تعداد اسکولوں میں روزانہ کی بنیاد پر نہیں آ رہی۔ سرکاری اسکولوں میں زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے زیر تعلیم ہیں۔ غربت سے تنگ بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو محنت مزدوری پر لگایا ہوا ہے۔ کراچی کے میرے 7 ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں سے 2.5 لاکھ سے انکریز ہو چکی ہے انرولمنٹ۔ ابھی اس سال جو سیشن چل رہا ہے، ہم نے پیرنٹس کو کہا ہے، ہم نے باقاعدہ SMC کے تھرو ہماری اسکول مینجمنٹ کمیٹیز جو بنی ہوئی ہیں ان کے تھرو ہم نے ان کی میٹنگز بلائی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ بچوں کو اسکولوں میں چھوڑیں اور ایڈوکیشن ہم بہتر کر سکیں۔ مہنگائی نے جہاں ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، وہیں غریب بچوں کو اب سرکاری تعلیمی اداروں سے بھی دور کر دیا ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے کراچی سندھ ٹیکسٹ بک کے گودام میں نصابی کتب تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر تعلیم نے بھی شرکت کی۔ مقبول باقر نے آئندہ سال وقت پر کتابیں دستیاب کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ رپورٹ کریں گی آئمہ خان۔ تعلیم کے فروغ کے لیے نگراں سندھ حکومت متحرک، طلباء میں نصابی کتابیں تقسیم کر دیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے نصابی کتب تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور نگراں وزیر تعلیم رانا حسین نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ آج خوشی کا موقع نہیں بلکہ افسوس کا مقام ہے۔ کتابیں بروقت تعلیمی اداروں میں پہنچنی چاہیے تھیں۔ کوئی بہت زیادہ خوشی کا موقع نہیں ہے، کوئی بہت خوشی کا مقام نہیں ہے، بلکہ افسوس کی مقام ہے کہ اس کی ہمیں کتابوں کی ڈسٹریبیوشن کی تقریب منعقد کرنی پڑی، جو کہ ایک بہت ہی روٹین کا کام ہے، اور میں آپ کے سامنے شرمندہ کھڑا ہوں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن میں ڈیلے ہوئی ہے، اور میں آپ کو سب کچھ کہانی سنانا نہیں چاہتا کہ کس مشکل سے آج بھی ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ یہ کتابیں بٹ رہی ہیں۔ نگراں وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ جس دلچسپی سے نگراں وزیر اعلیٰ نے فیلڈ کے دورے کیے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ اگلے ایڈیشن میں کور پیج اچھی کوالٹی کے بنوائیں تاکہ کتابیں زیادہ عرصے محفوظ رہیں۔ ٹیکسٹ بک بورڈ سے میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے نیکسٹ ایڈیشن میں جو کور پیج ہوتا ہے، جو بالکل پتلا کاغذ ہے، اس کو چینج کریں، اس کو ذرا ٹھیک بنا دیں تاکہ کتاب جو ہے وہ اس کی زندگی تھوڑی بڑھ جائے۔
تقریب کے اختتام پر طلبہ میں مفت کتابیں تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ ضیاء الدین بورڈ نے انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن کے تحت میٹرک اور انٹر امتحانات میں گریڈنگ سسٹم متعارف کرا دیا۔ سال 2024 میں 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلباء کو نمبرز کے بجائے گریڈ دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں کہ گریڈنگ سسٹم کا مقصد بچوں کو نمبرز کی دوڑ سے نکال کر انہیں اچھی تعلیم دینا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ ضیاء الدین ایگزامینیشن بورڈ کا انقلابی اقدام، نمبر سسٹم ختم، گریڈنگ سسٹم رائج، اب کوئی بھی فیل نہیں ہوگا۔ ضیاء الدین یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر عاصم حسین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہماری تجاویز کے نتیجے میں بچے کو اپنی مرضی سے مضمون منتخب کرنے کی آزادی ہوگی۔ بچے کامرس، بزنس اور کمپیوٹر سائنس کے مضمون لے سکتے ہیں۔ بالکل ان کو کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں فالو کریں گے۔ اگر ان کو کمپیٹیٹو رہنا ہے اور ان کو اگر معاشرے میں اپنی جگہ بنانی ہے تو ان کو اپنی سپیس بنانی ہوگی اور اپنے سسٹمز بہتر کرنے ہوں گے، اپنے ایگزامز بہتر کرنے ہوں گے اور اپنی کرپشن ختم کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ اب نمبرز کے بجائے گریڈنگ سسٹم ہوگا اور اس سسٹم میں کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا، جبکہ ڈاکٹر عاصم نے تعلیمی بورڈز کو آڑے ہاتھوں لیا اور کرپشن ختم کرنے کا مشورہ دے دیا۔ جی اب کوئی فیل نہیں ہوگا، اس کی صرف انسیٹسفیکٹری گریڈ ہوگی اور اسی سال میں اینیول 2 کے اندر وہ اپنوں کو اپ گریڈ کر سکتا ہے اور وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتا ہے، کیونکہ بہت سے ڈپلومہ کے اور ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اتنی زیادہ گریڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ اپنا کہیں نہ کہیں تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ آپ اس کو فیل کر کے اس کو بالکل ہی سوسائٹی سے نکال دیتے ہیں، تو یہ ایک آئی بی سی سی کا بڑا اچھا اقدام ہے اور میں چیئرمین آئی بی سی سی سے بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آؤٹ آف باکس سولوشن سوچ کے تو پاکستان کو ایک نئی ڈگر پہ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ جس سبجیکٹ میں بچہ غیر تسلی بخش رزلٹ لے اس سبجیکٹ کا امتحان دوبارہ دے سکتا ہے۔ جو بھی سائنس کے سبجیکٹ ہیں اس کے پریکٹیکل کے پری ڈیفائنڈ سوال شامل ہوں گے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ کسٹم حکام اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے متحرک۔ کسٹم انٹیلیجنس نے کراچی سائٹ ایریا میں کارروائی کرتے ہوئے 1.5 ارب مالیت کے اسمگل کیے گئے اسپیئر پارٹس اور سگریٹ قبضے میں لے لیے۔ سلمان سلیم رپورٹ کریں گے۔ کسٹم انٹیلیجنس ملک سے اسمگلنگ کا کلا کما کرنے کے لیے پرعزم۔ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس حبیب احمد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سائٹ ایریا میں کارروائی کے دوران 1.5 ارب روپے کا سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ پکڑے گئے سامان میں جاپان سے اسمگل کیے گئے اسپیئر پارٹس اور سگریٹ شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ 1 ارب 50 کروڑ روپے کا جیپنیز اوریجن کا سمگلڈ آٹو پارٹ پکڑا گیا ہے، جو ڈسپلے میں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کیس میں گرفتاریاں آٹو پارٹ کے کیس میں ابھی گرفتاری نہیں ہوئی، جو مالکان ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ حبیب احمد نے مزید بتایا کہ 4 ماہ کے دوران مختلف کارروائیوں میں 4 ارب مالیہ سے زیادہ کا اسمگل سامان پکڑا جا چکا ہے۔ 3.5 مہینے کے اندر 400 ارب سے زیادہ مالیت کا سامان کسٹم انٹیلیجنس کراچی سیز کر چکی ہے۔ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ کراچی پورٹ پر درآمدی گندم ٹرکوں کے ذریعے چوری ہونے کی انوکھی واردات ناکام بنا دی گئی۔ کراچی پورٹ پر ٹرکوں پر جعلی نمبر پلیٹ لگا کر گندم چوری ہونے کی واردات سامنے آ گئی۔ کے پی ٹی کے جی ایم ٹریفک جاوید میمن نے کہا کہ واقعے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اگر پورٹ کا کوئی اہلکار بھی ملوث ہوا تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے اشرف خان۔ کراچی پورٹ پر ٹرکوں پر جعلی نمبر پلیٹ لگا کر گندم چوری ہونے کی واردات سامنے آ گئی۔ ٹرک کے آگے ایک نمبر اور پیچھے حصے میں دوسرا نمبر لگا کر گندم چوری کرنے کی کوشش۔ درآمدی گندم کی چوری کے واقعے میں کے پی ٹی حکام، پورٹ فورس، کسٹم حکام کے ناک کے نیچے سے گندم سے بھرا ٹرک پورٹ سے باہر نکل گیا۔ گندم سے لدے ٹرک ڈرائیور کے پاس بلٹی نمبر اور نہ ہی وزن کی پرچی موجود تھی۔ استعمال شدہ گیٹ پاس اور مکمل کاغذات نہ ہونے کے باوجود ٹرک پورٹ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ٹرک کو پورٹ سے باہر نکلتے ہی امپورٹر اور ٹرانسپورٹر نے شک کی بنیاد پر ٹرک کو پکڑا اور امپورٹر نے چوری کی گندم کا ٹرک پکڑ کر کے پی ٹی کے حوالے کر دیا۔ کراچی پورٹ کے جی ایم ٹریفک نے واقعے کی تصدیق کر دی، کہا کہ واقعہ 21 اکتوبر کا ہے، واقعے کی ایف آئی آر درج کرا دی ہے۔ 21 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا تھا، جو میری نالج میں رات کو تقریباً
9 बजे के करीब मेरे ड्यूटी अफसर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ये गाड़ी है। मेन इशू जो अभी चल रहा है, हमने एफआईआर भी कटवा दी थी जिस गाड़ी को जो जा रहा था। केपीटी के जीएम ट्रैफिक ने कहा कि वाकई की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अगर पोर्ट का कोई एहलकार भी मुलविस हुआ तो नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रक पुलिस के हवाले कर दिया है और ट्रांसपोर्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब सारी इंक्वायरी हो रही है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये लोड कैसे हुई, गाड़ी बाहर कैसे गई। ये जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी और कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, एफआईआर कटी हुई है, जो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी, जिसके खिलाफ भी कोई अगर चीज़ हमारे सामने आ जाएगी, उसके खिलाफ प्रॉपर जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। केपीटी के जीएम ट्रैफिक ने कहा कि इंक्वायरी कर रहे हैं कि बगैर दस्तावेजात के ट्रक कैसे बाहर निकला। कहा कि ट्रक पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की गई। गेट पास भी मशकूक है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में पानी चोरों के खिलाफ रेंजर्स के ऑपरेशन कामयाबी से जारी। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर कबीर ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पंपिंग स्टेशंस के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अब तक सैकड़ों गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के कनेक्शंस पकड़े, जबकि दर्जनों को मिसमार किया गया। शहर कायद में पानी चोरों के खिलाफ रेंजर्स का घेरा तंग। रेंजर्स हेडक्वार्टर में रेंजर्स हुक्काम और वाटर कॉरपोरेशन की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग हुई। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर कबीर ने बताया कि 17 सितंबर से लेकर अब तक पानी चोरों के खिलाफ 92 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, 1200 गैर कानूनी कनेक्शन और 187 हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गयी। ऑपरेशन के दौरान 24 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील और 163 को मसमार किया गया। रेंजर्स हेडक्वार्टर में जारी ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 163 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एमडी वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया। 100 MGT पानी गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल घरेलू जरूरत के लिए चोर होता था। पानी चोरी से 13 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। चोरी शुदा पानी सारिफीन को 300% महंगा फरोख्त किया जा रहा था। मुश्तरका ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑपरेशन औरंगी, कस्बा कॉलोनी, न्यू कराची, क्लिफ्टन, गडाब और बल्दिया में किया गया। ऑपरेशन के बाद सरजानी, गडाब, क्लिफ्टन में पानी का प्रेशर बढ़ा दिया गया। शहरियों को अब ऑनलाइन अंदराज के बाद सरकारी रेट पर पानी फरोख्त किया जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा वाटर टैंकर को कराची वाटर कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड किया जा चुका है। सेक्टर कमांडर ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन पानी चोरी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। सेफ सिटी का जनवरी के पहले हफ्ते में आगाज हो जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने स्ट्रीट क्रिमिनल से तंग शहरियों को खुशखबरी सुना दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, सेफ सिटी होगा तो कराची सेफ होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों की हिफाजत की जानिब अहम इकदाम। सिंध सरकार का सेफ सिटी के मुकम्मल होने का पैगाम। स्ट्रीट क्राइम के चुंगल से निजात मिलने के इम्कानात। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का दौरा किया और सनतकारों के मसाइल सुने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेफ सिटी पर काम मुकम्मल हो गया। सेफ सिटी होगा तो कराची सेफ होगा। गैर कानूनी के वापस जाने से जराइम की शरह में कमी हुई। सेफ सिटी की बात यह है कि हर्डल आई नो कि हमारे पाकिस्तान बॉटल नेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने काफ़ी कोशिश की कि इसको जल्दी जल्दी करें। कैबिनेट में हम लेकर गए हैं, हमने PC1 बनाया, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, फिर NRC से नेगोशिएट किया, प्राइस कम की है। अब तकरीबन फाइनल हो गया और एक हफ्ते 10 दिन में ये PC बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन में अप्रूव हो के आएगा तो हम, मुझे उम्मीद है कि जनवरी में फर्स्ट वीक के अंदर हम इसकी जो है वो बुनियाद रख देंगे, इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जाके, और आप सबको बुलाएंगे भी। वी वांट सेफ सिटी होगी तो कराची सेफ होगा। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कामरान अरबी ने साइट फायर स्टेशन में मुलाजमीन की कमी और तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स की फरहमी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी अब्दुल हादी बोले, साइट में जराइम 100% बढ़ गया है। मसला ये है कि स्टाफ में शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है कि 2 फायर टेंडर्स चलें, ठीक है, एक फायर स्टेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो स्टाफ चाहिए तकरीबन 22-23 का स्टाफ चाहिए 24 आवर्स इसको ऑपरेट करने के लिए। साबिक सदर साइट एसोसिएशन तारिक यूसुफ ने जराइम की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर को करार दिया। सनतकार जावेद बलवानी ने वॉइस मैसेज के जरिए FIR के इंदराज की तजवीज़ दी। परमानेंट ऐसा डिजिटलाइज सिस्टम बना दें कि कल कोई भी आए मगर वो सिस्टम ऐसा, वो सिस्टम खुद चलाए। हम इंडस्ट्री में हमेशा यही करते हैं कि हमको सर पे खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने सरकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं, 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर महकमा सिंध लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। यूनियन कमेटी के 1968 मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज।
रिपोर्ट करेंगे एहसान अब्बासी। लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन परेशान, 2 माह गुजर गए, तनख्वाहों का मसला हल ना हो सका। ऑल कराची यूसीज मुलाजमीन इत्तेहाद के सदर सैयद मतीन रजा का कहना है कि यूनियन कमेटी के 11 ग्रेड के यूसी के 2000 के करीब मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। 2 माह की तनख्वाहों की बंदिश की वजह से यूनियन कमेटी मुलाजमीन के लिए जरूरियात जिंदगी पूरा करना मुश्किल हो गया है। और यहाँ देखें कि हमारे सबसे पूछें कि हमारे बच्चों का क्या हाल हुआ है सैलरी ना होने की वजह से। सैलरी का हमें कोई अफसर, कोई जिम्मेदार, कोई कुछ नहीं बता रहा, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा हमें। हम अपने हमारे बच्चे जो फका कशी पे आए हैं यार, फका कशी पे आए हैं। मुलाजमीन का कहना था कि यूनियन कमेटी को तनख्वाह न मिलने की वजह से मुलाजमीन घर के किराए, बिजली के बिलों, बच्चों की स्कूल फीस, घर के राशन के लिए परेशान है। कोई हक्काम वाला हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है कि ये तनख्वाहों से हमारे घर चलते हैं। बराए मेहरबानी हमारी तनख्वाहों को बहाल कर दिया जाए। जोकिया कोट मॉडल कॉलोनी में यूसी में हमारे जो क्लर्क थे तालिब साहब, उनका भी अटैक हो गया और काफ़ी लोग जो बेचारे हैं वो घरों से जो है बेघर किए जा रहे हैं और ये हमारे साथ सोतेला सलूक किया जा रहा है। ज़ीशान हैदर ने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी तनख्वाहों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वरना मुलाजमीन अहले खाना के हमरा सीएम हाउस पर धरना देंगे। कभी सकाफती विरसा चौकंडी की सुन ली गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने बेहतरी का बीड़ा उठा लिया। चौकंडी कब्रिस्तान को बतौर आर्कियोलॉजी पार्क बनाने की हिदायत कर दी। कब्रिस्तान की तरफ से तजावुज़ात हटाए जाएं, वज़ीर आला ने हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला की कॉलेज ऑफ नर्सिंग उस्मानुल्लाह वाला को ही गोट का भी दौरा, लैब बराए अतफाल और नौज़ादा निगहदाश्त के टेक्नीशियन कोर्स की स्किल लैब का इफ्तिताह कर दिया। कदीम सकाफती विरसा चौकंडी हुकूमतों की बेहिसी का शिकार, निगरान सिंध सरकार का एक्शन, चौकंडी की तरक्की का प्लान तैयार। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का चौकंडी कब्रिस्तान का दौरा। इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी सकाफत व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे से मुल्हिका बाहरी ट्रकों की गैर कानूनी पार्किंग खत्म की जाए। कहा कब्रिस्तान को आर्कियोलॉजिकल पार्क के तौर पर तैयार करना चाहता हूँ, जहाँ मुकामी और बैनुल अक़वामी दौरों को फरोग दिया जाएगा। जो कर सकते हैं हमें फंड्स का जो भी हिस्सा है वो कोशिश करेंगे कि इक्विटेबली खर्च हो। और उनके बहुत सारा कल्चर डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारा काम है और हम ज़रूरी नहीं कि हम किसी और से पैसे लें। अगर हम खुद कर पाए तो खुद कर लेंगे। यकीनी तौर पर बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं। क्वालिटी की चीज़ के लिए फंड्स की ज़रूरत है। आपको पाकिस्तान का पता है कि फाइनेंशियल स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इन कलील फंड में जो कर सकते हैं वो कोशिश करें। बादशाह निगरान वज़ीर आला सिंध ने लैब बराए अतफाल और नौज़ायदा नाजुक निगहदाश्त के टेक्नीशियन कोर्स की स्किल लैब का भी लैब यूनिसेफ के ताउन से कायम की गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोही गोट वुमेन अस्पताल का नाम नया नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की शरह अमवात पाकिस्तान में होना तशवीशनाक है। यकीन है ये इदारा मायारी अतफाल व नौज़ायदा तकनीकी माहिरीन तैयार। सिंध हाई कोर्ट में लियाकताबाद में गैर कानूनी इमारत की तमीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। गैर कानूनी तमीरात मिसमार न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने डीजी एसबीसी इसाक खोड़ो को रोस्टन पर तलब कर लिया। कहा आपके जवाब से अदालत मुतमईन नहीं है। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डीजी एसबीसीए और डायरेक्टर को शोकास नोटिस हुए थे। वकील एसबीसीए ने कहा कि हमने कार्रवाई की थी, तामीरात में मुलव्वस अफसरान को मुअत्तल किया था और मामला एंटी करप्शन को भी भेज दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके महकमा में ऐसा कोई अफसर है जो मुअत्तल ना हुआ हो। डीजी एसबीसीए कहाँ है? अदालत ने डीजी एसबीसीए इसाक खोड़ो को रोस्टम पर तलब कर लिया। डीजी एसबीसीए से अदालत ने इस्तफसार किया कि शोकास नोटिस आपको इसलिए दिया था कि आपने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। आपके जवाब से अदालत मुतमईन नहीं है। अदालत ने फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात मस्मार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में औरंगी टाउन में शादी हॉल मालिकान से भत्ता वसूली केस। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर वेस्ट को तलब कर लिया। अदालत ने डायरेक्टर वेस्ट की सरजनिश करते हुए एसपीसीए हुकाम को भत्ता वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर वेस्ट को तलब कर लिया। अदालत ने डायरेक्टर वेस्ट की सरजनिश करते हुए कहा कि फीस वसूल करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एसबीसी के डायरेक्टर को झाड़ पिलाते हुए शोकॉस नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत में मौकिफ इख्तियार करते हुए वकील दरखास्त गुजार ख्वाजा नवीद ने कहा कि एसबीसी हुकाम को मुतादिद बार शोकॉस जारी किए गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाली नोटिस जारी करती है और भत्ता वसूल करती है। अदालत ने डायरेक्टर को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि शादी हॉल मालिकान से दोबारा फीस वसूल करने की शिकायत आई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने 5 अफसरान के तबादले कर दिए। महकमा एंटी करप्शन ने तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
असिस्टेंट डायरेक्टर गरबी कराची हफीजुल्लाह अब्बासी को सेक्शन अफसर एंटी करप्शन सिंध बना दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक तहकीकात अल्लाह बख्श कुरेजो सेक्शन अफसर लीगल तैनात हो गए। तारक सेक्शन अफसर एंटी करप्शन बन गए। असिस्टेंट डायरेक्टर शर्की कराची मुजफ्फर अली धारिजो का तबादला करके उनकी खिदमात महकमा स्कूल तालीम के सुपुर्द कर दी गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर शर्की कराची वाजिद अली मंगी सेक्शन अफसर कानून सिंध तैनात हो गए हैं। महकमा एंटी करप्शन ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो पीपल्स पार्टी से आम इंतखाबात में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते उन्हें इत्तेहाद की ज़रूरत है। सड़क ब्लॉक करके तस्वीरें अवेजा करने से मसाइल हल नहीं होते। आपको बताएं कि मेयर कराची ने MQM पर तनकीद के तीर बरसा दिए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी से तकमील के मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। शोएब मुख्तार रिपोर्ट करेंगे। इंतखाबात के करीब आते ही सियासी माहौल गर्म। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन पर वार। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे के ताउन से कराची के मुकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में मुकर्ररीन की जानिब से सिंध में पायदार रिहायशी मनसूबे और खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में 21 लाख घर बनाने का फैसला किया है। मसाइल में घिरे अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जब हालिया सैलाब की वजह से सिंध में तबाहकारी हुई थी तो ये सिंध हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो साहब की, जिसने फैसला किया कि हम 21 लाख घर बनाने में लोगों की मुआवनत करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम करके दिखाया। काम होता हुआ नजर आ रहा है जिसको आज दुनिया भर रिकग्नाइज कर रही है। मेयर कराची ने MQM को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि जो पीपल्स पार्टी से आम इंतखाबात में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते, इन्हें इत्तेहाद की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हैं। MQM पाकिस्तान ने शायद इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि वो अकेले इलेक्शन हमारे ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते और उनको किसी इत्तेहादी की ज़रूरत है। और शायद नून लीग ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि वो हमारे ख़िलाफ़ अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको MQM की ज़रूरत है। तो हम लोग तो तैयार हैं। हम तो आज कहते हैं इलेक्शन आप करवा दीजिए, वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। ये दरवाजे तो हर सियासी जमात में, हर सियासी कारकुन के लिए खुले होते हैं। सियासत जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहते हैं। शहर में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत नताइज मिलने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि अवाम के मफाद में कोई फैसला लेने में ताखीर नहीं करेंगे। निगलेरिया से बचाव से मुतालिक भी बल्दिया उज़्मा कराची इकदाम उठा रही है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद से क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन वफ़द में जनरल सेक्रेटरी रेहान चिश्ती और दीगर अरकान भी मौजूद थे। CRA के वफ़द ने कराची पुलिस चीफ से शहर में अमन अमान से मुताल्लिक़ इक़दाम पर गुफ्तगू की और क्राइम रिपोर्टर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया है। पुलिस चीफ ने हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। CRA की तहरीर शिकायत पर पुलिस चीफ ने SSP के माड़ी को फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। शहरियों की बाजियाबी के लिए अमली इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लड़की समेत 18 लापता अफराद के केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लड़की शबाना 2018 से गुलबर्ग के इलाके से लापता है, जबकि सगे भाई माज और तलहा 2014 से लापता हैं। जुनैद खान 2015 और मोहम्मद ताहिर 2016 से न्यू टाउन के इलाके से लापता हैं। सगे भाई महमूदुल हसन और सऊदुल हसन 2017 से अजमेर नगरी के इलाके से गायब हो गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट और पेपर वर्क से कुछ नहीं होगा, हमें नताइज चाहिए। अदालत ने JITs और टास्क फोर्स को काम तेज करने की हिदायत भी की। अदालत ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक पुलिस, वफाकी और सूबाई हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है।